موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے مشہور ترین انقلابی رہنما چی گویرا نے یہ یادگار فقرے خطاب کرتے ہوئے ادا کیے۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ غریب عوام کے مسائل کا واحد حل خونی انقلاب ہے۔ گویرا ان 81 مسلح افراد میں شامل تھا جنہوں نے کیوبا کے صوبے اورینٹ میں دھاوا بولا۔ چی گویرا کی ڈائریز اس کی موت کے بعد چھپی۔ یہ کتاب موٹر سائیکل ڈائریز کہلاتی ہے اور اس عنوان سے اسی موضوع پر ایک یادگار فلم بھی بنی۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ دنیا کے مشہور ترین انقلابی رہنما چی گویرا نے یہ یادگار فقرے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایفرو ایشین سولیڈیرٹی سیمینار میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے ادا کیے۔ چی گویرا 14 جون سن 1928 کو لاطینی امریکہ کے ملک ارجنٹائن میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے تعلیم یافتہ خاندان کے ہاں پیدا ہوا جو بائیں بازو کے نظریات پر یقین رکھتے تھے۔ یہ خاندان اسپینش آئرش پس منظر کا حامل تھا اور ان کے گھر میں ہی 3000 سے زائد کتب پر مشتمل ایک لائبریری موجود تھی۔ چی گویرا کا پورا نام ارنیسٹو گویرا ڈی لا سرنا تھا۔ چی 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور دمے کا مریض تھا، مگر اس نے اپنی زندگی کے ایک ایک پل سے آزادی کا رس کشید کیا۔ وہ رگبی اور شطرنج کا عمدہ کھلاڑی تھا۔ تعلیم کے میدان میں بھی اس نے نمایاں کارکردگی دکھائی اور سن 1953 میں وہ طب کی تعلیم مکمل کر کے ایک ڈاکٹر بن چکا تھا۔ چی گویرا دوران تعلیم ملنے والی چھٹیوں کے دوران لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک کے سفر کو نکل جاتا۔ ان ممالک میں پھیلی غربت نے رفتہ رفتہ چی گویرا کو اس نتیجے تک پہنچنے میں مدد دی کہ غریب عوام کے مسائل کا واحد حل خونی انقلاب ہے۔ چی گویرا لاطینی امریکہ کے ممالک کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ثقافتی اور معاشی اکائی کے طور پر دیکھتا تھا۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ لاطینی امریکہ کے سامراجی منصوبوں سے آزادی کے لیے بین البراعظمی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ دسمبر 1951 میں میڈیکل کالج میں چھٹیوں کا طویل وقفہ آیا تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چی گویرا اور اس کا دوست البرٹو گرناڈو 500 سی سی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر چلی، پیرو، کولمبیا سے ہوتا ہوا وینزویلا جا پہنچا۔ دونوں دوستوں نے اپنی موٹر سائیکل کا نام پاورفل رکھا ہوا تھا۔ چی گویرا اس سے پہلے بھی سائیکل اور موٹر سائیکل کے ذریعے لاطینی امریکہ کے مختلف علاقوں کے دورے کر چکا تھا، مگر اس دورے میں چی میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اس کے باطن کا جوش ظاہر ہونا شروع ہوا۔ گویرا وینزویلا سے آگے میامی تک اکیلا گیا اور واپس ارجنٹائن جہاز پہ آیا۔ 9 ماہ پر مشتمل اپنے اس تاریخی سفر کی یادداشتوں پر مشتمل چی گویرا کی ڈائریز اس کی موت کے بعد چھپی۔ یہ کتاب موٹر سائیکل ڈائریز کہلاتی ہے اور اس عنوان سے اسی موضوع پر ایک یادگار فلم بھی بنی۔ سن 1953 میں گویرا گواٹیمالا گیا جہاں جیکب آربنز ترقی پسند حکومت کا سربراہ تھا اور بائیں بازو کے نظریات پر مبنی انقلابی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کاوشیں کر رہا تھا۔ گویرا نے اسی زمانے میں چی کا نام اختیار کیا۔ دراصل چی ارجنٹائن میں عام استعمال کا لفظ ہے جو عام گفتگو کے دوران وقفے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے سن 1954 میں اپنے مقامی ایجنڈوں کی مدد سے آربنز کا تختہ الٹ دیا۔ چی گویرا کو اب یقین ہو گیا تھا کہ سامراجی سوچ رکھنے والا امریکہ ہمیشہ سے ہی ترقی پسند بائیں بازو کی حکومتوں کی مخالفت کرتا آیا ہے۔ گواٹیمالا میں چی گویرا مکمل مارکسسٹ بن گیا تھا اور پوری دنیا میں مارکسسٹ انقلاب لانے کے خواب دیکھنے لگا۔ بدلتے حالات کے پیش نظر چی گواٹیمالا سے میکسیکو چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات کاسترو برادران، فیدل کاسترو اور راؤل کاسترو سے ہوئی۔
कास्त्रो बरादरान मेक्सिको में जलावतनी काट रहे थे। गुएरा ने कास्त्रो बरादरान के साथ मिलकर 26 जुलाई की तहरीक में हिस्सा लिया। गुएरा उन 81 मुसल्लह अफराद में शामिल था जिन्होंने क्यूबा के सूबे ओरिएंट में धावा बोला और रद्द अमल में क्यूबन आर्मी ने तकरीबन सभी इनकलाबी मार डाले। गुएरा समेत चंद एक इनकलाबी शदीद जख्मी हालत में बच निकलने में कामयाब हुए और क्यूबा के एक पहाड़ी सिलसिले में पनाह ली। यही पहाड़ी सिलसिला बाद में मुसल्लह इनकलाबियों की कार्रवाइयों के लिए बेस कैंप बन गया। बागियों की कामयाबी का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ। ये बागी सरकारी फौज से असलहा छीनते और नए बागी भर्ती करते। गुएरा पहले तो बागियों का मुआलिज था, मगर उसने असलहे की तरबियत भी हासिल कर रखी थी और इस तरह वो कास्त्रो के करीब तरीन साथियों में शुमार होने लगा। आखिरकार 8 जनवरी सन 1959 में कास्त्रो के फातेह सिपाही हवाना में दाखिल हुए। ची को कबाना जेल में तैनात किया गया, जहां इसने इनकलाब दुश्मनों को सजाएं देने और फांसियां लगाने का सिलसिला जारी किया। गुएरा अब बाकायदा क्यूबन शहरी बन चुका था। उसने वजीर के तौर पर क्यूबा की कई तिजारती वफूद की मुख्तलिफ मुल्कों में क़यादत और रहनुमाई की। ची मगरब में साम्राज्य और उसके नौआबादियाती निज़ाम की मुखालफत के लिए मशहूर हो चुका था। ची अमेरिका की खारजा पॉलिसी को अक्सर तनकीद का निशाना बनाता। सन 1960 के अवाइल में ची गुएरा अपनी तकारीर और तहरीरों के जरिए क्यूबा की पॉलिसीज की तौज़ीहात और तशरीहात में मगन रहा। सन 1965 में ची ने कम्युनिज्म के क्यूबन ब्रांड की वजाहत पर मबनी एक तहरीर लिखी जिसका उन्वान था इंसान और सोशलिज्म क्यूबा में। इस तहरीर ने दुनिया भर में तहसीन और दाद पाई और कबूल आम हासिल किया। सन 1961 में ची ने गुरिल्ला लड़ाइयों के उन्वान से एक किताब लिखी जिसमें छापा मार अफवाज और उनकी जंगों के बारे में इसके अपने ख्यालात और तजुर्बात शामिल किए गए। पहला नुक्ता यह था कि गुरिल्ला फोर्सेस बाकायदा अफवाज को शिकस्त से दो चार करने की अहलियत रखती हैं। दूसरा नुक्ता यह था कि इनकलाब लाने के लिए तमाम शराइत का पूरा होना लाजमी नहीं, बल्कि इनकलाब का अमल शुरू कर देने से ही इनकलाब की शराइत भी खुद ब खुद मुकम्मल होना शुरू हो जाती हैं। और तीसरा नुक्ता यह था कि मुसल्लह मज़ाहमत जारी रखने के लिए लातीनी अमरीका के कम तरक्की याफ्ता मुज़ाफ़ाती इलाके बेहतरीन मकाम हैं। ची ने यह तसव्वुर दिया कि सोशलिस्ट शहरी मुआशरे की तरक्की के लिए जद्दोजहद करता है और उसका अपना ज़ाती मुफादात से कोई लेना देना नहीं होता। ची दिन रात काम करता और जब बहुत ज़्यादा थक जाता तो अक्सर औकात अपने दफ्तर में ही सो जाता। छुट्टी वाले दिन ची गन्ने के खेतों में मजदूरी करने जाता। क्यूबन रियासत जब रूस के ताबे हो गई और सोवियत यूनियन ने क्यूबा को बताए बगैर वहां से अपना मिसाइल सिस्टम हटा लिया तो ची का तो जैसे दिल ही टूट गया। सन 1962 में ची गुएरा चीन की जानिब माइल हो गया और चेयरमैन माओ जे तंग को काबिल अमल मिसाल समझने लगा। इसी ज़माने में ची ने अपने एक बयान में कहा था कि मुझे लगता है कि मैंने अपने फ़र्ज़ का वो हिस्सा अदा कर दिया है जिसने मुझे क्यूबा की सरजमीन और इनकलाब से मुंसलिक रखा। सो मैं तुमसे, साथियों से और तुम्हारे अवाम से जो मेरे हो चुके हैं रुखसत होता हूँ। कोई कानूनी बंधन मुझे अब क्यूबा के साथ नहीं बांधे है। जो बंधन हैं वो एक और नौइयत के हैं, ऐसे बंधन जिन्हें अपनी मर्जी से तोड़ा नहीं जा सकता। सन 1964 दिसंबर में ची न्यूयॉर्क गया, जहां इसने क्यूबन मामलात में अमरीकी मदाखलत पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए ची ने कहा कि अमरीका की जानिब से क्यूबा की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिल कबूल हैं। अप्रैल सन 1965 में ची अचानक अवामी ज़िंदगी से दूर हो गया। अगले 2 बरस इसकी नकलो हरकत खुफिया रही। बाद में मालूम हुआ कि इस अरसे में वो कुछ गुरिल्ला साथियों के हमरा कॉन्गो चला गया था, जहां उसने मुसल्लह मज़ामत को ऑर्गेनाइज करने की कोशिशें की। कॉन्गो जाने से पहले वो अपनी वजारत और शहरियत दोनों को खुदा हाफिज कह चुका था। सन 1966 में गुएरा दाढ़ी और सर मुंडवाकर बोलीविया पहुंच गया। उसने सांता क्रूज के इलाके में गुरिल्ला लड़ाइयों को मुतहर्रिक किया। ची और उसके साथियों को इक्का दुक्का कामयाबियां मिली, मगर बोलीवियन फौज ने इनकलाबियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया था। अमरीकी CIA की भरपूर कुमक बोलीविया के
जाबिर हुक्मरानों को हासिल थी। 8 अक्टूबर सन 1967 के रोज बोलिविया की फौज ने सब गोरिल्ले मार दिए और ची को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल एक मकामी मुखबर ने करीबी फौजी अड्डे पर ची और उसके साथियों के ठिकाने की इत्तला दी, जिस पर फौज हरकत में आ गई। अमेरिकन CIA जो कॉन्गो से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, इस ऑपरेशन में बोलिवियन अफवाज की भरपूर मदद कर रही थी। फिर प्लान बनाकर ची और उसके साथियों के गिर्द पहाड़ियों में घेरा तंग किया गया। 1800 फौजियों ने इस मिशन में हिस्सा लिया। CIA ने इन्हें गाइड किया। ची और उसके साथियों ने मुकाबला किया, मगर वो मुट्ठी भर थे और जल्द ही मारे गए। ची जख्मी हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसे पूछताछ के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर लिया गया। अगले रोज शाम तक कई बार कोशिशें की गई कि वो मुंह खोले, मगर बकौल एक फौजी के जख्मी होने के बावजूद ची बिल्कुल मुतमईन बैठा था और किसी घबराहट के बगैर सबसे आंखें मिलाकर उन्हें घूर रहा था। बताने वालों ने बताया कि ची की आंखों में ऐसा रोब और ऐसी चमक थी कि हम में से कोई भी उससे सही नजर नहीं मिला पा रहा था। ऑफिसर आ जा रहे थे और उससे पूछताछ कर रहे थे, मगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। अलबत्ता उसने अपने लिए तंबाकू जरूर तलब किया, जो उसे फराहम किया गया, जिस पर वो काफी खुश हुआ और शुक्रिया भी अदा किया। फिर जब 2 दिन तक उस पर मगजमारी करने से भी कुछ हासिल ना हुआ, तो उसकी रिपोर्ट सदर को दी गई, जिसने किसी मुमकिन दबाव से बचने के लिए उसकी फौरी मौत का हुक्म सादिर कर दिया। CIA की ख्वाहिश थी कि उसे पनामा मुंतकिल किया जाए ताकि वहां उनकी खुसूसी टीम उससे मजीद तफ्तीश करे, मगर सदर को डर था कि अगर वो फरार हो गया तो शायद फिर हाथ ना आए और उसकी हुकूमत फिर खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा उसने अपना हुक्म बरकरार रखा और हुक्म की तकमील की गई और उसी शाम उसे एक ऐसे शराबी जल्लाद के हवाले किया गया जो जंग में अपने 3 साथी खो चुका था और ची को उनकी मौत का जिम्मेदार समझता था। जब वो ची के सामने पहुंचा तो ची ने उसे उकसाया और फौरी मौत हासिल करने की कोशिश की, मगर शराबी जल्लाद ने मंसूबे के मुताबिक आड़ी तिरछी 9 गोलियां चलाई और उसे बहुत ही अजियतनाक मौत से दो-चार किया। उस वक्त ची गुएरा महज 39 बरस का था। किताब ची गुएरा की डायरीज में एक मजमून फिदेल कास्ट्रो का भी है, जिसमें वो लिखते हैं कि ची लड़ते हुए मारा गया। इसकी M2 राइफल की नाली एक गोले से बिल्कुल बेकार हो गई थी। इसके पिस्तौल में गोलियां नहीं थी। इस बेबसी में उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। फिदेल ने लिखा है कि उसकी टांगों में इतने जख्म थे कि वो चल भी नहीं सकता था। इसी हालत में उसे हिगोराज लाया गया। फौजी अफसरों ने उसे कत्ल करने का फैसला किया। एक स्कूल में इस फैसले पर अमल दरामद की तफसीलात सबको मालूम है। जाते जाते अपने बच्चों के नाम खत में ची ने लिखा कि तुम्हारा बाप एक ऐसा आदमी था जिसने जो सोचा उस पर अमल किया। यकीन रखो वो अपने नजरियात से मुकम्मल तौर पर वफादार रहा। याद रखो अगर कोई चीज अहम है तो इनकलाब, इसके मुकाबले में हमारी जात, हमारा वजूद कतन कोई अहमियत नहीं रखता। ची की मौत की सरकारी तारीख 9 अक्टूबर सन 1967 है। ची की मैयत काफी अरसे के बाद एक इज्तिमाई कब्र से बरामद की गई। ची के दोनों हाथ कटे हुए थे, जो दरअसल रिकॉर्ड के लिए उसकी मौत के वक्त काट लिए गए थे। ची को क्यूबा में सांता क्लारा के मुकाम पर दफन किया गया और वो रहती दुनिया तक ना सिर्फ पूरे लातीनी अमेरिका का नाकाबिले फरामोश कौमी हीरो है, बल्कि पूरे दुनिया के इनकलाबियों के लिए काबिले पैरवी मिसाल भी है। ची पर दर्जनों फिल्म्स, ड्रामे और थिएटर प्ले किए गए हैं, जबकि उस पर बेशुमार किताबें, मज़ामीन और रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं। ची की तस्वीर वाली शर्टें, मग और दीगर अशिया आज भी इनकलाबियों के लिए रूमान परवर समा पैदा कर देती हैं और ची गुएरा की तस्वीर दुनिया भर में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली तस्वीर में शामिल है। कहा यह जाता है कि आप इनकलाबी को तो मार देते हैं, लेकिन इनकलाब नहीं मरता, नजरिया नहीं मरता। ची गुएरा आज भी हर इनकलाबी के दिल में जिंदा है और हर इनकलाबी के दिल में ची गुएरा की तस्वीर, उसके फरमुदात, उसकी कहानियाँ
اس کے فکرے، اس کے قصے، اس کی آزادی کی جدوجہد جب بھی سنائی دیتی ہے تو ان کے دل سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، چی گویرا زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔